નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, જનરપન ન્યૂઝમાં આપણું સ્વાગત છે. મિત્રો, ભક્તિનો રંગ એવો હોય છે કે એકવાર ચડી જાય પછી એ જન્મ સુધી ઉતરતો નથી. અને તેવો જ રંગ એક યુવાન રાજસ્થાનના પ્રિન્સ પંચારિયા, જે બાલોતરા રાજસ્થાનનો નિવાસી છે અને ઘરેથી નીકળી જાય છે ભારતના 5 જ્યોતિર્લિંગની યાત્રામાં. સોમનાથ, ત્રંબકેશ્વર, મહાકાલેશ્વર, ઓમકારેશ્વર અને કેદારનાથ, આમ 5 જ્યોતિર્લિંગની યાત્રા કરી અને નેપાળમાં પશુપતિનાથના દર્શન કરી કૈલાસ પર્વત માનસરોવરમાં જઈને આ યાત્રા પૂર્ણ કરવાનું છે. પૈદલ એટલે કે પગપાળા ચાલીને આ યાત્રા જશે. કેવા કેવા અનુભવ થાય, કેવા કેવા લોકો મળે અને સાથે હર હર મહાદેવના નારા સાથે નીકળેલા યુવાન પ્રિન્સ પંચારિયા આજે વડોદરા ખાતે આવ્યા હતા અને વડોદરા અમે તેમની મુલાકાત લીધી હતી. ખરેખર એક યુવાનમાં જે ભક્તિની ઉર્જા હતી એ જોઈને અમને પણ ખૂબ આનંદ થયો અને અમે એમની સાથે વાત કરી. એટલે ભક્તિની જે તાકાત છે એ એક અમને અનુભવ થયો કે ખરેખર જે આપણા ઋષિમુનિઓ અને જે કંઈક લોકો પ્રાણ સાથે ભગવાનનું નામ લેતા હતા અને ગળા ડૂબ થતા હતા હશે ને ઈશ્વર એમની કેવી રીતે રક્ષા કરતો હતો. આ યુવાન શું કહી રહ્યો છે, કેવી રીતે નીકળ્યો છે, ક્યાં જવાનો છે, હિન્દુ ધર્મ માટે, સનાતન ધર્મ માટે આજે પોતાની યુવાનીમાં જ લોકોને મેસેજ આપવા નીકળ્યો છે કે આપણા ધર્મ માટે આપણે આગળ આવવું જોઈએ અને આપણી સંસ્કૃતિ બચાવવા માટે આપણે પહેલ કરવી જોઈએ. આવો સાંભળીએ प्रिंस पंचारिया શું કહી રહ્યા છે. आप कहाँ तक जाने वाले हो? जय महादेव, जय महाकाल। मेरा नाम प्रिंस पंचारिया है। मैं बालोतरा राजस्थान से हूँ और मैं कैलाश मानसरोवर पर्वत तिब्बत चाइना की पैदल यात्रा कर रहा हूँ और मैं निकला हूँ बालोतरा राजस्थान से। बालोतरा एक छोटा सा गांव है जहाँ पे मैं रहता हूँ। वहाँ से भारत के 5 ज्योतिर्लिंग करते हुए कैलाश मानसरोवर तिब्बत चाइना की पैदल यात्रा कर रहा हूँ। ये यात्रा 12,000 किलोमीटर की है और करीबन इसमें मुझे 2 साल का समय लग सकता है और अभी तक मैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कंप्लीट कर चुका हूँ और अभी इस साइड में महाराष्ट्र के वडोदरा सूरत होते हुए मैं महाराष्ट्र त्र्यंबकेश्वर जा रहा हूँ। आपको ये सोच कैसे आई और आपका उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य साफ साफ और सीधा सटीक है, सनातन धर्म का प्रचार करना और हिंदुओं को जगाना, हिंदुओं में एकता लाना। कितना टाइम हो गया अभी तक? मेरे को अभी तक 6 महीने हो गए घर से निकले हुए। 6 महीने से मैं यात्रा कर रहा हूँ। कितना पैदल चल चुके हो आप? मैं अभी तक 2500 किलोमीटर तक पैदल चल चुका हूँ। और टोटल कितना होगा? टोटल 12,000 किलोमीटर रहेगा। आपके साथ में सामान में क्या क्या लेकर निकले? मेरे साथ ऐसे बताऊंगा तो लंबी लिस्ट है। शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं बताऊं तो मेरे पास एक जो मेन चीज़ें होती है, सबसे बड़ी चीज़ है टेंट और एक बैग है मेन, मेरा जो फ्लैग है जो मेरे पीछे है अभी, और एक पोस्टर है जिसके पीछे डिटेल में लिखा हुआ है कि मैं कहाँ कहाँ जा रहा हूँ और कहाँ पे जा रहा हूँ, कितने किलोमीटर की यात्रा है। बाकी जो ज़रूरतमंद की चीज़ें होती है, कुछ खाने की चीज़ें, कपड़े, शूज़, चप्पल्स और कुछ सेफ्टी के लिए सामान। 6 महीने से आप चल रहे हो, आपका कोई अनुभव ऐसा कुछ हुआ? ऐसे बहुत सारे अनुभव हुए, लेकिन सबसे मेन जो अनुभव मैं लोगों को जो बताना चाहता हूँ वो एकता का है। मैंने अभी तक 6 महीने में ये देखा है कि हिंदुओं में एकता नहीं है। આભાર. આપકા નામ? પ્રિન્સ પંચારિયા. જી અમીનીબેન, તમે પ્રિન્સભાઈને કેવી રીતે ઓળખો છો? બરોડા આવ્યા છે, પ્રિન્સભાઈને મળ્યા, શું કહેશો એના વિશે? તમામ દર્શકોને તો પહેલાં સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ, નમસ્કાર. અને હું છું ગુજરાતી, હિન્દી અને ભોજપુરી એક્ટર્સ. કહેવાનું મિનિંગ એટલે મેં દેખાડ્યું કે હું શું છું, એ આગળ જતાં તમને ખ્યાલ આવશે. એ જીવનની એક સીડી છે. હરેક ઇન્સાન પોતાની જીવન જીવવા માટે થઈને બિઝનેસ, જોબ વગેરે કરતા હોય. એવી રીતે એક મારું કામ છે અને કર્મ રીતે હું ક્યાંક ને કંઈક એક સારી વ્યક્તિ જે પ્રિન્સ તરીકે આવા ઘણા બધા છોકરાઓ જે કંઈક આ ધર્મના સ્થાન ઉપર જતા હોય છે, રસ્તે ચાલતા હોય છે, એ મારું કર્મ હું એવી રીતે નિભાવતી હોઉં છું. સો એક સરસ આના થકી મને મેસેજ મળ્યો છે કે કહેવાય છે કે અત્યારનું જે સોશિયલ મીડિયા છે, હરેક સારી વસ્તુ એટલી જ ખરાબ વસ્તુ પણ છે, પણ એનો આધાર તમારો એ છે તમે શું એમાંથી એચીવ કરી રહ્યા છો. બરાબર? તો જે જ્યાં બુરાઈ છે ત્યાં સારાઈ પણ છે. તો
મેં હંમેશા માર્ક કર્યું છે કે જ્યારે પણ વ્યક્તિ સવારમાં ઉઠે છે કે એના દિનચર્યાની જે શરૂઆત કરવાની હોય એક ઇન્સાન તરીકે એ કાર્ય છોડીને સૌથી પહેલા સોશિયલ મીડિયાને એની નજદીક જતું હોય. કેટલા વાગ્યા એ જોવાની સાથે સાથે તરત જ તે મોબાઈલમાં એનું સર્ચિંગ થાય ને એની પાછળ કેટલો સમય જતો રહ્યો છે એને ખ્યાલ નથી હોતો. હું પણ મારા જીવનચર્યામાં જ્યારે સવારે ઉઠું છું, મારા નિત્યકર્મ પ્રમાણે મારી અમુક વસ્તુઓ હું પૂર્ણ કર્યા પછી, દર્શન કર્યા પછી ઘણીવાર હું મોબાઈલ ટચ કરું છું. પણ હું મારા જીવનમાં મારા વડીલો પાસેથી હંમેશા શીખી છું કે સારી વસ્તુઓમાં એને ગ્રહણ કરવી તો તમારું જીવન સફળ થશે. તો એ માધ્યમથી, સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી મને પ્રિન્સ, આ તમે જોઈ નિહાળી રહ્યા છો, આ છોકરાના મને સરસ રીતે એક ઉર્જા સાથે એના વિડીયોમાં મને દેખાણો અને રાષ્ટ્રધ્વજની સાથે ખૂબ જ જુસ્સાની સાથે એ મેં જોયું. મને રૂપ્સ અત્યારે થઈ રહ્યા છે. સો આને જોયા પછી મેં ઘણી બધી એની રીલ બેક ટુ બેક આના થકી એક ન્યૂ યંગસ્ટર જે છે, જે આજકાલ ક્યાંક ને ક્યાંક એની દુનિયામાં એમ સમજે છે કે ડિસ્કોમાં જાઓ, ક્લબમાં જાઓ, કેફેમાં જાઓ અને છેક ડ્રગ્સ સુધીના માધ્યમ સુધી પહોંચી ગયા છે. ત્યારે આ જનરેશન એ અત્યારના યુથને એક સરસ મેસેજ આપી રહ્યા છે કે તમારો જન્મ તમને થયો છે તો ખાલી એન્જોય કરવા માટે નથી. તમારો જન્મ છે એ તમારા કર્મો પૂરા કરવા માટે છે. તમારા મા બાપની સેવા કરો, તમારી ખુદની, તમારા સંતાનની, સાથે સાથે તમારું સમાજની, દેશની અને તમને જે ધર્મમાં જન્મ આપ્યો છે એ ધર્મને કંઈક સારા મેસેજ સુધી પહોંચાડી શકો એની માટે પણ તમારો જન્મ ઈશ્વરે તમને આપ્યો છે. આ પૃથ્વી ઉપર તમે એ માટે પણ જન્મ છે. તો પ્રિન્સને મળ્યા પછી બહુ ખુશી થઈ મને. અને જ્યારે મેં પહેલી વાર એને ગઈકાલે જોયો તો મારા આપ મોઢે, મારા મુખમાંથી નીકળી ગયું કે મને અંદરથી એવું થાય છે કે કાશ મારી કોખે આટલા સરસ છોકરાએ જન્મ લીધો હતો. તો એક માને હંમેશા ખ્વાહિશ હોય કે એક સમજાયા પહેલા એનું બાળક ધર્મના ક્ષેત્ર પણ એટલું આગળ વધતું હોય. તો એવું થાય કે ભાઈ આ મારો જ છોકરો છે, મારું સંતાન છે અને કદાચ હોત તો એક એની મા માટે પ્રાઉડ થાય છે અને એની મા માટે ઈર્ષા પણ થાય છે. તો પ્રિન્સ, तो खूब खूब स्वागत हमारा बड़ौदा में. અને हाँ, हमें अच्छा लगा आपको मिलके. मेरे को बहुत अच्छा लगा, ये प्यार मिलके बहुत अच्छा लगा. मेरे को ऐसा होता है ना कि दीदी घर से बाहर निकलता है ना तो मम्मी की याद अब बेटे को कहीं ना कहीं आ ही जाती है. तो वो जो प्यार होता है ना, वो जो घर का खाना, घर की मम्मी की डांट, घर की डांट तो चलो कहीं सुनने को ना मिले, वो फोन पे मिल जाती है, लेकिन जो प्यार रह जाता है ना मम्मी का, तो वो क्या, कभी कभी मम्मी से बात नहीं कर पाता मैं फोन पे. उनको जब कहना होता है ना कि मम्मी तेरी याद आ रही है, तो उस टाइम में फटाक से फोन कर देता हूँ कि पता है कि रोना आ जाएगा मेरे को. तो वो जो प्यार बाकी रहता है ना, वो मुझे ऐसे मिल जाता है. बहुत सारी माताओं के हाथों के मैं मतलब उनके हाथों से खाना खाया है, आशीर्वाद मिला है. कई बार ऐसा भी हुआ है मेरे साथ कि जिन जिन घर पे गया तो वो माताएं खुद रोने लग जाती है और मुझे भी रुला देती है. तो वो जो चीज़ होती है ना, वो इस जिंदगी में आपको धर्म के रास्ते पर चलोगे, अच्छाई के रास्ते पर चलोगे तो ही वो आप कर पाओगे, वरना वो आप नहीं कर पाओगे. बहुत इजीली मिल जाता है ये प्यार, लेकिन आप उसको ग्रहण करने के लिए आप खुद वैसे होना ज़रूरी है, अच्छा मैसेज देना होना ज़रूरी है. माँ का प्यार इस दुनिया में सबसे भगवान से ऊपर रखा गया है. माता पिता का प्रेम जो है, माता पिता का जो दर्जा है वो बहुत ऊपर रखा गया है. और हाल फिलहाल मैं उन दोनों के साथ नहीं हूँ, मैं अपने मॉम डैड के साथ नहीं हूँ. इन देश में जितने भी माता हैं वो मेरे लिए माँ है. मुझे उनसे प्यार मिल रहा है जैसे आपसे मिल रहा है. तो महादेव भी शक्ति की उपासना करते हैं, शक्ति के बिना महादेव भी अधूरे हैं. बिल्कुल अधूरे हैं. तो सारी माताओं का आशीर्वाद लेके ये मानसरोवर तक पहुंचेंगे. तो कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा होता है कि इनके जैसे पहले भी, जैसे हमारे पहले भी बात चली कि बहुत सारे हिंदुस्तान में ऋषि मुनि, अच्छे अच्छे जो तप किए, संत महात्मा सब हो गए. तो कहीं ना कहीं इसका भी रास्ता ये जा रहा है. तो खुशी है हमें कि आज हम इससे मिले और ऐसे ही आप धर्म के लिए, लोगों के लिए ऐसे काम करते रहो, है ना. और ऐसे ब्यूटीफुल अच्छे मैसेज आपसे थकी मिलते रहे, लोगों को ज्ञान मिलता रहे, ऐसी ख्वाहिश हमें हमेशा रहेगी आपसे. मैं शायद ये चीज़ अपने लास्ट मरने तक नहीं भूल पाऊंगा कि इन 2 सालों में मैं जितने लोगों से मिला हूँ, तो मैं ये चीज़ मानता हूँ कहीं ना कहीं उस ऊपर वाले ने कहीं ना कहीं लिखा होगा उन लोगों से मिलना, कहीं ना कहीं लिखा होगा. वरना
क्यों कोई जाना चाहेगा अपने घर से इतना दूर, अपना काम छोड़ के, अपने माता पिता छोड़ के, अपने साथी छोड़ के, अपनी इंजॉयमेंट की लाइफ छोड़ के, कोई नहीं अपने घर से निकलना चाहेगा। लेकिन उसका बुलावा आया और मैं निकला, और कहीं ना कहीं ये मैसेज मुझे खुद को मिलता है कि प्रकृति भी कुछ चीज होती है कि वो आपको बहुत सारा प्रेम देगी और कुछ ऐसी चीजें भी देगी जिसको आपको लगेगा कि वो गलत है, लेकिन एक्चुअली वो गलत नहीं है। वो आपको सिखाने के लिए आपके साथ गलत हुआ है, वो बहुत ज्यादा सही है। जब तक आपके साथ गलत नहीं होता, आप ठोकर नहीं लगती, आप समझ नहीं पाते हो कि आप गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो। सही काम के लिए सही बंदे को ही चुना जाता है। बहुत हाँ सही है। तो वही हो जाता है ना, हमारे काम में मेरे जैसे बहुत सारे लोग हो गए जो मेरे साथ कनेक्ट हो गए, वो उनका भी ऐसा ही मन होता कि हम भी कहीं जाए। तो मैं कई बार ऐसे करती हूँ अपने काम में से, जैसे बोलते हैं कि एक एज के बाद मत जाओ, एज के बाद जाओगे तब आपकी हड्डियां नहीं चलेगी। अब हमारी सारी माताएं, सारे महादेव बहुत ऊपर विराजमान होते हैं। जब तक आप में साहस है, आपको भगवान ने ताकत दी है, जाके मिलो। आप मिल के दर्शन किए होगे तो जनरेशन को आगे आप मैसेज कर सकोगे जब तक आपकी जिंदगी जीने को मिली है। बट आप ही खत्म हो जाने को हुए होगे और तब जाओगे तो क्या लोगों किसी और को आप ज्ञान दे पाओगे। तो मैं कहीं जहाँ मेरे को टाइम मिलता है, जब सारे शेड्यूल में से, तो मैं हर टाइम ईश्वर के नजदीक जाने की कोशिश करती हूँ। पर जो नहीं जा पाते तो जो इन जैसे लोग साहस करते हैं, इनको मिलके ऐसे लग जाता है कि कहीं ना कहीं इनके सहारे हम भी वहां जा रहे हैं। तो शुक्रिया आपका बहुत सारा। मैम, मैं पता है सबसे ज्यादा इस दुनिया में अगर मैं किसी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और चाहे कितना भी उनके लिए अच्छा कर लूँ, कितनी भी सेवा कर लूँ, ये जो मेरा जो मौका है ना, मुझे देने वाली मेरी माँ है। मैं जब घर छोड़ के निकला था ना अपना, तो लास्ट बार ही अपनी मम्मी के हाथ से पानी पिया था, और मुझे वहां तक ये तक बताया गया कि अब तो 2 साल तक, जब तक कैलाश के दर्शन ना हो जाए, चाहे 10 साल लग जाए, तो अपनी मम्मी के हाथ का खाना नहीं खा सकता और घर का पानी तक नहीं पी सकता। मैं मेरे घर वालों के लिए एक भिखारी की तरह, एक संत की तरह वैसे हूँ। तो वो जब सुना था ना मैंने, मेरे पैरों के नीचे से धरती हिल गई थी। मुझे नहीं पता था कि ये सब चीजें भी होती है। वो जब करने का ठानी ना, तब मुझे पता चला। और वो जो फील है, वो जो अंदर से प्यार है, वो जो हार्टनेस फील होती है, दुख होता है अंदर से, वो शायद एक वहां बैठी हुई मेरे घर में मम्मी समझ रही होगी। क्योंकि हर शाम ऐसा होता था कि फोन आता था कि आजा घर पे खाना बन रहा है, अब वो फोन नहीं आते। सही है। इसकी बात भी कहीं ना कहीं हमारे बच्चे स्कूल से, तो मैं और साथ में ये कहूंगी, कहीं ना कहीं किसी के दिलो दिमाग में, जहन में ख्वाहिश पड़ी हो कि धर्म के लिए कुछ करे, तो ठान लो। तो कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। बस वो है कि जो चीज है, हिम्मत करके आप धर्म के स्थल पे निकल पड़ो, तो महादेव के और माताओं के आशीर्वाद मिलते ही रहेंगे। बट सोच हमारी बहुत नीची रहती है हमेशा, इसलिए कहीं ना कहीं हम हमेशा हार थक के बैठ जाते हैं। बट हमेशा अच्छी सोच के साथ ईश्वर की गति पे निकल पड़ो तो ईश्वर मिलते ही है ना। थैंक यू। हर हर महादेव। हर हर महादेव।